Welcome in B part of lecture 5th. In today's lecture we will solve question 3rd to question 6th based on total derivative and composite function. The third question is find the total derivative of u with respect to t where u is equal to e की power x sin y, x is equal to log t and y is equal to t cube. Also verify by direct calculation. ठीक है, तो here u is function of x and y, x is function of t, y is function of t, तो your u is composite function of t variable here. So to find the total derivative of this, as u is function of x and y, तो I need curly u by curly x. So differentiate this with respect to x. When you differentiate this with respect to x, e की power x का derivative e की x into sin of y. ठीक है, then curly u by curly of y, it is e की power x as it is and differentiate the sin of u and sin u derivative is cos u. तो curly u by curly y is e की x cos of y. Then I need dx by dt, तो logarithm का डेरिवेटिव क्या होता है 1 by angle, तो log t का डेरिवेटिव होगा 1 by t and derivative of y with respect to t, it gives you 3t square. So now put all the formulas in the total derivative. So du by d of t. Here u is function of x and y. So u is function of x and y. So first I will differentiate u derivative with respect to x. So it is curly u by curly x. Then x is further function of t. So dx by dt. Plus अब u second variable क्या है? That is y. So curly u by curly y into dy by dt. Now use the value of curly u by curly x from here, this value, and dx by dt is 1 by t. Curly u by curly y is e की x cos y here and dy by dt is 3t square here. So put all these values in this expression. So we get e की x sin y 1 by t plus e की x cos y 3t square. Now हमें वेरीफाई करना है, तो पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y. तो इन प्लेस ऑफ x यू विल राइट log ऑफ t एंड इन प्लेस ऑफ y यू विल राइट t क्यूब पुट कर देंगे. ठीक है, तो व्हेन आई पुट ऑल दिस वैल्यूज du बाई d ऑफ t इज इक्वल टू e इन प्लेस ऑफ x आई एम पुटिंग हियर log ऑफ t sin t क्यूब into 1 by t plus e की x e की log t cos t cube 3t square. E और log one answer. So here you will obtain only t. So this gives you t and here is sin t cube. This term 1 by t as it is plus you can cancel this one. So here you will obtain only t. Here cos t cube and 3t square. This t to t cancel out, the sin of t cube plus this 3 here t power cube and cos of t cube. So I obtain this expression here. You can write this also as sin t cube plus 3t cube into cos of t cube. ठीक है, ये तो आया हमारा बाय चेन रूल. ठीक है, by definition I obtain du by dt is equal to this one. Now to verify the answer, क्वेश्चन पूछा गया है also verify by direct calculation. डायरेक्ट कैलकुलेशन का मतलब है पहले आप u की प्लेस पे वैल्यू पुट कर दीजिए. देखिए आपका u कौन है, e की पावर x साइन ऑफ y, तो x की वैल्यू log ऑफ t यहाँ पुट करो, तो here will be t साइन ऑफ t क्यूब. तो when I put e की पावर x e log of t, तो t2 कैंसिल t, तो here t and sin of y, तो it gives you this one. Now differentiate this with respect to t. So this gives you first function as it is d by dt of sin t cube plus second function as it is sin t cube into d by dt of first function. First function is your t here. Now this t is as it is. First you will differentiate the sin. साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा cos ऑफ
t cube into derivative of inside term. What is inside here? T cube. So here is sine t cube and derivative t is 1. So it gives you t, and this is cos of t cube, and derivative of t cube is 3t square plus sine of t cube. This t cube gives you 3t cube cos of t cube plus sine of t cube, and which is same as we obtained by definition. ठीक है ना, तो जो definition से आपको आंसर मिला था same you obtain here, तो hence verify the result. तो आपने वेरिफिकेशन कर ली. ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है. फॉर कंपल्सरी पार्ट में भी क्वेश्चन हो सकता है. नाउ कम टू द क्वेश्चन फोर्थ. Statement for the fourth question is z is equal to u square plus v square. It means z is function of two variable u and v, and here the relation is given to you, and u is equal to at square, यानी u is function of t and v is equal to 2at. ठीक है, you have to find dz by d of t. तो ये कैसे पता चलेगा कि डायरेक्ट उसका है? देखिए यहाँ पे dz by d of t है, and z is function of uv फंक्शन ऑफ t वेरिएबल. तो z जो है दैट इज कंपोजिट फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल दैट इज t हियर. तो वी फर्स्ट कैलकुलेट हियर करली z by curly of u. So when I partially differentiate this expression with respect to u, I obtain 2 of u, and partially differentiate this with respect to v, I obtain 2 of v, and derivative of u with respect to t, so I obtain 2at, and derivative of v with respect to t, it gives you 2 of a. यहाँ ये मेंशन नहीं है कि बाय डेफिनेशन करना है या बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, तो इट्स योर चॉइस. तो हम चेन रूल से भी कर सकते हैं. तो डी जेड बाई डी ऑफ टी. तो जेड किसका फंक्शन है यहाँ पर? जेड इज फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल यू एंड पी. फर्स्ट आप जेड का डेरिवेटिव करेंगे यू के साथ, एंड यू इज फर्दर फंक्शन ऑफ टी. यहाँ देखिए, तो इट गिव्स यू डी यू बाई डी ऑफ टी, एंड जेड सेकेंड वेरिएबल कौन है? दैट इज वी. तो दिस गिव्स यू करली जेड बाई करली ऑफ वी एंड डी वी बाई डी ऑफ t. Now curly z by curly of u, that is twice of u, du by dt, its value is 2at. Curly z by curly v, it gives you 2v, and dv by dt is 2a. So 2 2 ja 4, 2 2 ja 4, 4 is everywhere, a is everywhere, so I am taking 4 of a outside. It gives you ut plus v. ठीक है, आप चाहें तो आंसर ये भी दे सकते हैं, या फिर अगर आपको आंसर इन टर्म ऑफ टी देना है तो आप कह सकते हैं 4 ऑफ ए इन प्लेस ऑफ यू. फॉर द वैल्यू ऑफ यू इज हियर ए टी स्क्वेयर. सो इन प्लेस ऑफ यू विल राइट ए टी स्क्वेयर इंटू टी, प्लस इन प्लेस ऑफ वी यू विल राइट 2at. तो हियर अगेन 2 a into t, you can take it outside. So one a is here, you are taking one more a, so it gives a square, and you are taking t from here, so here a is outside, t outside, so it gives t square plus this 2 and this one. So it's last final answer to dz by d of t. Let us take fifth question. The statement for the fifth is u is equal to टेंजेंट इनवर्स y by x, यानी कि u किसका फंक्शन है? x एंड y का, एंड इट इज गिवन हियर कि x इज इक्वल टू e की पावर t माइनस e की पावर माइनस ऑफ t, एंड y इज इक्वल टू e की पावर t प्लस e की माइनस t. फाइंड डी यू बाई डी ऑफ t. ठीक है, तो अगेन आई विल अप्लाई द सेम फॉर्मूला. I will write u is function of two variable, that is u is function of two variable x and y, and further x is function of one variable that is t here, and your y is function of again t. So u is composite function of one variable
ठीक है। नेक्स्ट 6 लेक्चर में हम करेंगे कंपोजिट फंक्शन ऑफ मोर देन वन वेरिएबल. In that case, how to find the derivative. Then we will solve implicit, we will learn the definition of implicit function and how to differentiate this. ठीक है. Now how to find du by d of t. Again the formula du by dt. पहले हम u के पास जाएंगे. u को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं ओनली विद रिस्पेक्ट टू x एंड y. तो पहले x के पास जाएंगे. x इज फर्दर फंक्शन ऑफ t एंड you are totally differentiating with respect to t. So you will write here dx by d of t. मोस्टली स्टूडेंट पूछते हैं कि यहाँ dx by dt आएगा या करली x by करली t. तो इसके लिए देखिए x किसका फंक्शन है, वन वेरिएबल. जब वन वेरिएबल का है तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो टोटली डिपेंड अपॉन ओनली वन वेरिएबल. सो इट गिव्स dx by dt हियर. देन u फर्दर किस वेरिएबल का फंक्शन है, y का. तो करली u by करली y इंटू y का डेरिवेटिव t के साथ करना है तो इट गिव्स dy by d of t. ठीक है. अब ये आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में आपने किया हुआ है कि u जो है दैट इज टेंजेंट इनवर्स y बाय x. तो टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर, यानी y बाय जो भी इनसाइड फंक्शन है, इनसाइड टर्म है वो यहाँ स्क्वायर में आएगा इनटू में डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड टर्म. अब इनसाइड टर्म कौन है टेंजेंट इनवर्स के अंदर, दैट इज माई y बाई एक्स इंटू में dx बाई डी ऑफ टी. अब इसका डेरिवेटिव करना है आपको विद रिस्पेक्ट टू t. तो dx बाई डी टी क्या आएगा, e की पावर t का डेरिवेटिव e पावर t एंड e की माइनस t का डेरिवेटिव e की माइनस t इंटू माइनस t का डेरिवेटिव +1. तो इट गिव्स हियर दिस वैल्यू. ठीक है. प्लस अब आपको करना है करली u बाई करली y. अब u फिर आपका टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स है तो ये क्या देगा आपको, इट गिव्स यू 1/1 प्लस y बाई एक्स का स्क्वायर. ठीक है. इनटू में इनसाइड टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, आप किसके साथ डेरिवेटिव कर रहे हैं, y के साथ. ठीक है ना. टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स का डेरिवेटिव आपको y के साथ करना है तो 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर इंटू करली बाई करली y ऑफ इनसाइड टर्म. तो व्हाट इज इनसाइड टर्म हियर, y बाई एक्स इंटू dy बाई डी ऑफ t. y इज दिस वन. अब इस टर्म का डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t. तो e की पावर t का डेरिवेटिव e की पावर t एंड e की माइनस t का माइनस t इंटू -1. तो दिस प्लस साइन इज -1 हियर. ठीक है. अब इन दोनों को सिंप्लीफाई कीजिए तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है. एंड इसका डेरिवेटिव व्हेन यू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, योर वाई इज ट्रीटेड एज कांस्टेंट. 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, -1 बाय एक्स का स्क्वायर. और यहाँ क्या आएगा, ई की पावर टी और ई की पावर माइनस ऑफ टी है. ठीक है. ऐसे यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर अबो इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अब वाई बाय एक्स का डेरिवेटिव वाई के साथ करेंगे तो वाई का होगा 1 और एक्स का 1 बाय एक्स तो कांस्टेंट है एंड दिस इज ई की पावर टी. अगर आप अब चाहें ना तो ऐसे कैलकुलेशन दे सकते हैं कि यूअर एक्स इज ई की पावर टी माइनस ई की माइनस टी. तो ये कौन बन गया, ये आपका एक्स ही बन गया. तो आप इसे एक्स रख सकते हैं एंड दिस एक्सप्रेशन इज नथिंग बट वाई. तो आप ऐसे कर सकते हैं कि इसे कैंसिल कर दो. हियर इज यूअर माइनस वाई ई की पावर टी प्लस ई की माइनस टी, इट्स वैल्यू इज वाई एंड इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड हियर एक्स टू एक्स कैंसिल. तो दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर. अब यहाँ देखिए ये आंसर आ गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. बट ये टोटली कंपोजिट फंक्शन ऑफ कितने वेरिएबल है, दैट इज ओनली टी. तो डी यू बाई डी टी आई नीड हियर इन टर्म ऑफ टी. मुझे टी की टर्म में चाहिए. तो इसके लिए मैं क्या करने वाली हूँ, एक्स स्क्वायर की वैल्यू अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं एंड वाई स्क्वायर. आई कैलकुलेटेड दिस वन हियर एक्स स्क्वायर. एक्स इज ई की पावर टी माइनस ई की माइनस टी का स्क्वायर. व्हेन यू स्क्वेयरिंग दिस तो दिस गिव्स ई की पावर टी का स्क्वायर
प्लस ई की पावर माइनस टी का स्क्वायर इंटू में माइनस 2ab, तो ई की पावर टी, ई की पावर माइनस ऑफ टी है, ई टी का स्क्वायर गिव्स यू ई की 2t प्लस ई की माइनस 2t and this e की पावर 0 that is 2 here. Similarly y square is e की t plus e की माइनस t का स्क्वायर है. ठीक है, तो this gives you प्लस है तो प्लस 2 आएगा. अब now add these two, x square plus y square. When I add this 2 to 2 cancel. So this is 2 time of e की पावर 2t plus e की माइनस ऑफ 2t. Now this minus this, क्योंकि हमारा माइनस भी है यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इट्स वैल्यू इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, तो ये टर्म तो कैंसिल आउट, तो दिस गिव्स -4. तो यूज दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू इन दिस वन, तो दिस 2 इक्वेशन, दिस 3 and it's 4. So when I put all these values in equation number 2, I obtain x square minus y square, its value is -4, and x square plus y square, this is e की पावर 2t and e की पावर माइनस ऑफ 2t. This 2 to 2 कैंसिल कर दीजिए, तो here you will obtain minus of 2. So this is -2 upon e की पावर twice of t and e की पावर -2t. This is the required answer. ठीक है, हमेशा du/dt जब भी आप करेंगे तो अगर वो वन वेरिएबल का है तो आफ्टर टोटल डेरिवेटिव यूजिंग चेन रूल यू विल राइट इन द फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल दैट इज योर टी. ठीक है, नाउ टेक द क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन 6 इज एप्लीकेशन ऑफ दिस टोटल डेरिवेटिव. इफ एक्स इज इंक्रीजिंग at the rate of 2 centimeter per second at the instant when x is equal to 3 and y is equal to 1 centimeter. At what rate must y be changing in order that the function 2xy minus 3x square y shall be neither increasing nor decreasing? ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका गिवन फंक्शन क्या है. ठीक है, तो जिसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करना है, नाइदर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, वो फंक्शन है ये. यानी कि इस क्वेश्चन में आपका u है 2xy माइनस 3x स्क्वायर वाई. दिस इज गिवन टू यू हियर. ठीक है, अब इसमें देखो क्या गिवन है. हियर गिवन दैट x इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. इंक्रीजिंग है ना, तो ये आपने किया होगा कि रेट ऑफ चेंज अब एक पे ही डिपेंड है, तो रेट इसने बोल दिया यानी कि dx/dt एंड दिस वैल्यू इज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड एट द इंस्टेंट. अब पर्टिकुलर उसके इंस्टेंट की बात कर रहे हैं. x एंड y दे डिपेंड अपॉन टाइम एंड जो ना x की वैल्यू है आपकी 3. ठीक है, एंड 3 सेंटीमीटर एंड इट इज आल्सो गिवन दैट व्हेन y इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर व्हाट रेट मस्ट y चेंजिंग. देखिए ये आपको गिवन नहीं है dy/dt क्या है, लेकिन ये कह रहा है कि y be changing in order that this function shall be neither increasing nor decreasing. इसका मतलब है यहाँ पे u फंक्शन है एक्स वाई का, x का रेट ऑफ चेंज गिवन है एट पर्टिकुलर टाइम एंड corresponding that time x and y is also given to you and dy/dt this is not given to you. ये आपसे पूछा गया, ये हमें कैलकुलेट करना है. एंड du/dt दिस इज गिवन हेयर 0. तो दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन. ठीक है, ये मैंने क्यों लिया, बिकॉज u इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग. ठीक है, कांस्टेंट है तो इसका रेट ऑफ चेंज क्या आएगा, दैट विल बी 0. नाउ u इज फंक्शन ऑफ, आप कह सकते हो यहाँ पे u इज फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल x एंड y. x इज फंक्शन ऑफ t एंड y इज फंक्शन ऑफ t. दैट्स वाई मैंने ये कहा कि ये आपका एप्लीकेशन क्वेश्चन है. ठीक है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूजिंग द चेन रूल आई कैन से du/dt इज नथिंग बट curly u by curly of x into dx/d of t plus curly u by curly of y into dy/d of t. Is it clear? ठीक है, now आप क्या करेंगे, this is given to me in my question is 0. curly u by curly x, partially differentiate this with respect to x.
When I differentiate this with respect to x, the first term gives 2y constant, derivative of x is 1. dx by dt I am writing it as it is because ये मुझे एक पर्टिकुलर टाइम पे गिवन है. कर्ली बाय कर्ली y. अच्छा, एक मिस्टेक मैंने कर दिया. आई जस्ट मेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस वन. देखो, कर्ली यू बाय कर्ली ऑफ x, इट मीन्स दिस इज कर्ली बाय कर्ली x ऑफ 2xy minus 3x²y. So when I differentiate this with respect to x, this term gives you 2y and this term gives you 3 to the 6xy. So this is 2y minus of 6x into y. So I am writing this one here. ठीक है, and dx by dt curly u by curly y. Similarly partial differentiate this with respect to y. तो y के साथ करेंगे तो 2x minus 3x². So here you will obtain 2x minus 3x² and dy by d of t. ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है. तो when a particular time reach, here given that dx by dt is 2 centimeter per second है. ठीक है, तो use these conditions. x is 3, y is 1, dx by dt is 2 cm2. So this is 2, y is 1 minus 6, x is 3, y is 1, dx by dt is 2 plus 2, the x value is 3, so multiply 3 minus 3, x value is 3, 3 का स्क्वायर into dy by d of t. ये हमें नहीं पता, ये कैलकुलेट करना है. तो सिंप्लीफाई कर दीजिए. 2 minus 6 3 जा 18 into 2 plus 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 जा 27 into dy by d of t. So when I simplify this one, so 2 minus 18 is 16, 16 2 जा 32, 6 minus 27, this gives minus 21 dy by dt. I am taking this on the left hand side, so this is minus 32, divide this by this, तो minus 32 by 21. ठीक है, तो फैक्टर बनेंगे नहीं. तो हेयर यू कैन से आप डी वाई बाई डी टी है, अगर इसकी लिमिट देखें तो क्या बनेगी, सेंटीमीटर पर सेकेंड. दिस साइन इज नेगेटिव, इट मीन्स देखो अगर इंक्रीजिंग होता है तो पॉजिटिव लेते हैं, अगर ये नेगेटिव है तो ये क्या होगा, डिक्रीजिंग. तो हम कह सकते हैं y इज डिक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 32 by 21 सेंटीमीटर पर सेकेंड फॉर माई गिवन प्रॉब्लम. सो आई रोट इट हियर कि y नेगेटिव साइन चला गया डिक्रीजिंग के अंदर, रेट आपका यही है 32 by 21, यूनिट आपकी सेंटीमीटर पर सेकेंड. व्हेन माय गिवन फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग. ठीक है, तो ऐसे ऐसे 2 क्वेश्चंस और हैं जो एक्सरसाइज में है. एंड फॉर द बीटेक स्टूडेंट दीज क्वेश्चंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. बीएससी में पूछ सकते हैं. ठीक है, तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है. तो ये आज हमने टॉपिक कवर अप किया, टोटल डेरिवेटिव व्हेन u इज कंपोजिट फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल. In 6th lecture, we will solve all the important questions when u is composite function of more than one variable. Thank you so much for watching.